Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, in last couple of videos, we can discuss about what is reaction, what is reactant, reagent, product, right? All these things we can discuss some basic concept regarding the general organic chemistry. Then we can switch over the type of bond cleavage, where we can study about two type of bond cleavage. That is, first one is called as homolytic bond cleavage and second one is called as heterolytic bond cleavage, right? Then we can start very important topic, that is called as reaction intermediate. Means the unstable charge species formed during reaction and also consumed during reaction is called as reaction intermediate. वो चीज हमने देखा है, where we can study about five reaction intermediate. Out of five, we have complete three reaction intermediate in last two or three videos, right? First one is carbocation, or carbocation is also called as carbonium. Second, we can discuss about carbanion. Third, we can discuss about carbon free radical. Now today we can discuss remaining two reaction intermediate. That is, first one is called as carbene and second one is called as nitrene. So let's begin with the what is meant by carbene and what is meant by nitrene. उसको हम लोग आज क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, right? So dear students, we can start with the fourth reaction intermediate, that is called as carbene. So we can start with the carbene. So carbene is also one type of important reaction intermediate that can be formed in some specific reaction. ये हर एक reaction में form नहीं होता, it can form in some specific reaction where the carbene intermediate are formed. So carbene are nothing but it is a neutral divalent carbon species in which carbon is bonded to two monovalent atom. Carbon किसको bond रहता है? It is bonded with the two monovalent atom. So carbene is a neutral divalent carbon species in which carbon is bonded to two monovalent atom or group and it is surrounded by six set of electron. कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? Six set of electron means it consists of six electrons surrounded by it. तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे, carbene means what? The reaction intermediate which consists of two bond pair with one lone pair. Two bond pair with one lone pair. For example, if you take the example of carbon, तो carbon की valency कितनी? 4. It consists of 4 electron in its outermost shell. So out of 4, 2 valency can be satisfied by two monovalent atom and remaining 2 valency can act as a lone pair. So this is the general structure of carbene. So carbon are divalent where it consists of two bond pair with one lone pair. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? It is called as lone pair and it is called as bond pair. So this is called as carbene. If we take the example of carbene, so where if both the valency can be satisfied by hydrogen, so we can write in this way. और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH2 having 2 electrons. It is a one type. It is called as methylene. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Methylene. Another example, if both the hydrogen is replaced by chlorine or CCl2 having 2 radical, it is called as dichlorocarbene. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Dichlorocarbene. This dichlorocarbene form in one special reaction that is called as Remer-Tiemann reaction. So this dichlorocarbene are formed during Remer-Tiemann reaction. So it is called as methylene and it is called as dichlorocarbene. Here, why it is called neutral? Because it does not consist of any charge. It does not consist of positive charge as well as it does not consist of negative charge. That's why this species is called as neutral species. इस species को क्या बोला जाता है? Neutral species, because it does not consist of any charges. And that's why it is called as neutral. Divalent means what? Because its two valency can be satisfied by any monovalent atom or group of atom and remaining two electrons act as a lone pair. Right? Next we can discuss about the type of carbene. So if you see, carbene are also two type. कितने टाइप के रहते हैं? कार्बिन अपने को यहाँ पे पढ़ना है. कार्बिन आर ऑफ टू टाइप. तो कौन कौन से दो टाइप है कार्बिन के, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट वी कैन स्टडी अबाउट टाइप ऑफ कार्बिन.
So we can discuss about type of carbene. Type of carbene. Now carbene कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली कार्बिन आर टू टाइप, राइट। कार्बिन की कितने टाइप रहते हैं? दो टाइप अपने को यहां पे पढ़ना है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बिन एंड सेकंड वन इज ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। Singlet and triplet. Triplet means 3 and singlet means 1. So there are two type of carbon. Dear students, ये जो मैं बता रहा हूँ सिंगलेट ट्रिपलेट, ये थोड़े एडवांस लेवल पे, तुम्हारे बेसिक लेवल पे सिर्फ तुमको पता रहना चाहिए कि कार्बन क्या होता है, दैट्स इट। बट हम लोग थोड़ा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू इसको हम लोग और भी क्या करेंगे, इलॉबरेट करेंगे। सो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन हम लोग देखते हैं। अभी सिंगलेट कार्बन क्या होता है? सो सिंगलेट कार्बन इज अ कार्बन इन विच ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है जो लोन पे रिएक्ट हो रहा है, अगर ये सिंगल एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बन। और अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बन। नाउ जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन। सो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये दो वैलेंसी तो ये सेटिस्फाई हो गया। नाउ अगर रिमेनिंग वन वैलेंसी, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है इसको क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बन, जहां पे एक ऑर्बिटल क्या रहेगा? कंप्लीटली खाली रहेगा। दिस इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में। तो दिस इज द p orbital is empty and both the electron are present in this orbital. So this is the structure of singlet carbon. But triplet carbon is somewhat different. यहाँ पे भी कार्बन की दो वैलेंसी है, but remaining two electrons suppose in the shape of p orbital. We know that the p orbital are dumbbell shape. p orbital का shape कैसा रहता है? dumbbell shape. जैसे हमने देखा s orbital are spherical, p orbital are dumbbell and d orbital are double dumbbell shape. उसका shape क्या रहता है? double dumbbell shape रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Now this is the 2p orbital. In this case 2p orbital, but 1p orbital consists of both the electron and 1p orbital is completely empty. बट यहाँ पे क्या होगा? इन ट्रिपलेट ये जो दो बॉन्ड पेयर तो है, रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल। सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बन। एंड इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन सेम ऑर्बिटल इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगलेट कार्बन। नाउ अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है और इसमें सिमिलरिटी क्या है, वो हम लोग चीज देखेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। ये जो कार्बिन है, कार्बिन के में सिमिलरिटी क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, ये जो कार्बिन है ये क्या रहता है? न्यूट्रल। मतलब न तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है न तो इस पे नेगेटिव चार्ज। हम लोग देख रहे हैं कार्बिन की प्रॉपर्टी। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट सराउंडेड बाय कार्बन? कितने इलेक्ट्रॉन है? अब हमको पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन का रहता है? दो इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिंगलेट में कितना? 1 2 3 4 5 6। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट में कितना? 1 2 3 4 5 6। मींस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑब्वियसली वी नो दैट ऑक्टेट रूल, मिनिमम उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? कार्बिन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बिन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन की वहां पे क्या है? कम है, राइट। उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को देगा? क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहिए कि देना चाहिए? अगर मान लो तुमको 100 रुपए की जरूरत, तुम्हारे पास 85 रुपए है, तुम दूसरे के पास से 50 रुपए उधार लोगे कि उसको 50 रुपए दोगे? ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? 50 रुपए उसके पास से लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं? ई पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो रहता है वो क्या रहता है? Lewis acid means the species which can take electron pair are act as a Lewis acid. तो ये जो कुछ चीजें हैं ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है, सिंगलेट एज वेल एज ट्रिपलेट के लिए। सिंगलेट के लिए भी न्यूट्रल है, ट्रिपलेट भी न्यूट्रल है। सिंगलेट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपलेट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। सिंगलेट कार्बन आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ट्रिपलेट कार्बन आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
right? Singlet carbene act as electrophile, triplet carbene also act as a electrophile, singlet carbene also act as a Lewis acid, triplet carbene also act as a Lewis acid. Now इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट इसको करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं सिंगलेट के लिए। तो जो सिंगलेट कार्बिन है, अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन? ना हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो को फॉलो करो, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल एज वेल एज कार्बोकेटायन एज वेल एज कार्बन एन, हर जगह मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था तुम लोगों को। जिन्होंने वीडियो को फॉलो किया उनको अच्छे से निकालता आएगा। फिर भी एक बार हम लोग बता देते हैं, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए वन सिग्मा बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एक्ट होता है? सिग्मा बॉन्ड। और जहां पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp3। जहां 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म होता है क्या रहता है उसका? sp2। और जहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है? sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या रहता है? ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल। sp2 है तो क्या रहेगा ज्योमेट्री? ट्रायगोनल प्लानर। sp है तो क्या रहेगा ज्योमेट्री? लीनियर। तो यहाँ पे क्या है? दिस लोन पेयर एक्ट एज ए वन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? क्या रहेगा? ट्रायगोनल। क्या रहेगा? ट्रायगोनल प्लानर। अब ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? लेस देन 120 डिग्री। लेस देन क्यों बोला मैंने? बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है जिसके कारण बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ट्रिपलेट में कितने, देखो अब यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग जगह प्रेजेंट है, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या रहेगा? इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। नाउ इसमें और एक पॉइंट सिंगलेट में, अब यहाँ पे देखो सारे जो इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है। तो जहां पे भी सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर फॉर्म में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमैग्नेटिक। तो सिंगलेट कार्बिन का नेचर क्या रहता है? इट इज, हम लोग यहाँ पे लिखते इट इज डाय मैग्नेटिक स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज? डायमैग्नेटिक। बट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड मतलब सिंगल, कपल फॉर्म में नहीं है। तो जहां पे भी अनपेयर्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? पैरा मैग्नेटिक। राइट। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग कार्बिन। अगर तुमको एक बार देखना है इसका स्क्रीनशॉट लेकर को, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार देखते हैं हम लोग। कार्बिन मींस इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 2 बॉन्ड पेयर विद 1 लोन पेयर। इट इज अ न्यूट्रल, इट कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस एसिड। कार्बिन आर 2 टाइप, फर्स्ट वन इज सिंगलेट कार्बिन, सेकंड वन इज ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन पे एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं। एंड ऑल दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिस्कस। Right now this carbene can form one very important name reaction, that is Remer-Tymon reaction, where we can see there are formation of dichlorocarbene can takes place. So this is all regarding carbene as a reaction intermediate. Next we can study about the nitrene. Before the proceed on nitrene, you just take a screenshot of it, right? That can be helpful for your further studies, right? So thank you for understanding of carbene. Now next move on the nitrene. So let's begin with the nitrene. It is the last reaction intermediate which is formed during reaction. So nitrene means what? The reaction intermediate, a neutral space in which nitrogen having 1 bond pair with 2 lone pair. अगर नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रीन। नाइट्रीन मींस व्हाट? the neutral reaction intermediate in which nitrogen having 1 bond pair with 2 lone pair is called as nitrene. Now let's see the properties of nitrene. कि nitrene electron deficient है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखते हैं। In case of nitrene, how many electrons are present around nitrogen? Nitrogen के सराउंडिंग में कितने? Just count it. So here 1 sigma bond, it made up with the 2 electrons. So total number of electron means 2, 4, 6. So it is a 6 electron species.
कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस नाउ 6 इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्टेट नॉट कंप्लीटेड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एंड दैट्स व्हाई यहां पे क्या रहेगा इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या एक्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या एक्ट होगा ये इट्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल and as well as it act as a Lewis acid. Act होगा Lewis acid, right? So just like carbon, nitrogen also only difference is that nitrogen having one bond pair with the one bond pair with the two lone pair are called as nitrene. Now if you see the structure of nitrene, अगर हम लोग nitrene का structure देखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है? तो just like carbon, nitrene also two type. Singlet nitrene and ट्रिपलेट नाइट्रीन तो सिंगलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं देयर इट इज अ नाइट्रोजन so this is the structure of singlet nitrine in singlet nitrine both the lone pair are present in a same orbital मतलब एक ऑर्बिटल में दो लोन पेयर है दूसरे ऑर्बिटल में दो लोन पेयर है तो इसको क्या बोलेंगे सिंगलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है डिफरेंट है एक बॉन्ड पेयर तो है दूसरे एक लोन पेयर क्या रहेगा एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा रिमेनिंग टू लोन पेयर they can be present on two different orbital वो लोन पेयर क्या रहेंगे दो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे दैट्स इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट नाउ सेम यहां पे मैंने बताया था दिस टू लोन पेयर एक लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड एक्ट होता है और ये तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2 ठीक है अब इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा ट्रायगोनल प्लानर ठीक है बट इसका शेप डिफरेंट है बिकॉज क्योंकि हमने देखा है शेप को डिसाइड करता है ओनली बॉन्ड पेयर लोन पेयर डज नॉट डिसाइड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट्स व्हाई शेप इज लीनियर शेप क्या रहेगा लीनियर नाउ द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180 सिमिलरली ट्रिपलेट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज वन सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड हियर this one and this one it is not act as a sigma bond so here the hybridization of this is sp here geometry is linear shape also linear ठीक है शेप के बाद हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे bond angle also 180 degree now one thing again we can study about magnetic property here all the electrons are present in pair form that's why this is the diamagnetic this species is the diamagnetic here this species is a paramagnetic ये species क्या है पैरामैग्नेटिक राइट तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग सिंगलेट एंड ट्रिपलेट बट इसके क्लास लिस्ट में ये नहीं है बस तुमको इसका मीनिंग पता रहना चाहिए कि नाइट्रीन क्या होता है तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग नाइट्रीन तो नाइट्रीन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग और ऐड कर सकते हैं नाइट्रीन इज अ न्यूट्रल स्पेसिस ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूट्रल राइट आई बात समझ में आता तो आज हमने क्या किया सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट आज हमने ये 4 क्लासेस में खत्म किए पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कार्बो केटायन और कार्बोनियम एक ही है उसके बाद कार्बन एंड देन नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कार्बन फ्री रेडिकल देन वी कैन स्टडी अबाउट द कार्बन एंड नाइट्रीन राइट अब हम लोग क्या करते हैं ये जो तुमने जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ा इसको हम लोग क्या करते हैं एक जगह हम लोग समराइज करते हैं ताकि उसका कंपेयर करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ रिगार्डिंग द नाइट्रीन नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द ऑल द टाइप सारे टाइप्स को हम लोग क्या करते हैं एक साथ कंपेयर करते हैं हम लोग उसमें देखेंगे क्या सिमिलरिटी है एंड क्या डिफरेंस तुमको वहां पे दिखता है तो राइट सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कार्बन को कैसे हम लोग सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को एक साथ क्या कर सकते हैं यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं
So let's compare with all the reaction intermediate. पहले हमने क्या लिखा है, कार्बन एनायन, then कार्बोकैटायन, then कार्बन फ्री रेडिकल, then कार्बिन, then नाइट्रीन. अब इन सबका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन एनायन मतलब क्या रहता है, कार्बन हैविंग 3 बॉन्ड पेयर विथ 1 नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज. इसको क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन. कार्बोकैटायन मींस कार्बन हैविंग 3 bond pair with positive charge. इसको कार्बोकैटायन. Here carbon having 3 bond pair with 1 single electron is called as carbon free radical. Here carbon having 2 bond pair with a pair of electron, it is called as carbene. And here nitrogen having 1 bond pair with a 2 lone pair is called as nitrate. So this is the general structure. Right. Now if we compare the number of electron, it consists of 6. It consists of how many electron, 8 electron. 8 कैसे हो गए, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू 2 electrons. Here 2 electrons, 2 electrons and 2 electrons. In this case positive charge does not act as any electron, so it consists of 6 electron. It consists of 7 electron. Count it, 1 2 3 4 5 6 7. It consists of 6 electron. It consists of 6 electron. So here you can compare in terms of number of electron. अगर हम लोग सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है, कार्बन एन हैविंग 8 6 7 मींस यहाँ पे क्या रहेगा, अगर कार्बन एन की बात करते हैं तो ऑक्टेट ऑफ कार्बन एन इज कंप्लीटेड एंड दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दिस वन इज इलेक्ट्रॉन deficient. This one is electron deficient and this one is electron deficient. Then this carbon and act as a nucleophile, that is Nu minus, because it is electron rich, it easily donate electron, but this is act as a electrophile, E positive. It is also act as a electrophile, E positive. It is also act as a electrophile, that is E positive. It is also act as a electrophile. तो एक चीज याद रखो, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या एक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल. एंड ऑल द इलेक्ट्रोफाइल आर लुईस एसिड. ये क्या एक्ट होगा, लुईस, सॉरी ये लुईस बेस, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा करके लुईस बेस. बाकी रेस्ट क्या रहेगा या तुम्हारा, इट इज आल्सो एक्ट एज ए लुईस एसिड. 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 Now, if we compare the hybridization, तो यहाँ पे अगर हम लोग hybridization देखते हैं तो क्या रहता है, sp3, here hybridization sp2, here hybridization sp2, here hybridization sometime sp2 and sometime sp, here also sp2 and क्या रहेगा sp. Now sp2 for triplet, sp for singlet. It is for triplet, it is for singlet, जो हमने वो चीज पढ़ा हुआ है, right? कार्बन एन की ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहाइड्रल, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट. यहां पे इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर. यहां पे भी सेम ट्राइगोनल प्लानर. हियर आल्सो ट्राइगोनल planar. Here also trigonal planar. ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर. देन यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमने देख लिया हुआ है, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 120. हियर बॉन्ड एंगल 120. हियर बॉन्ड एंगल लेस देन 120 और 180. यहाँ पे भी सेम रहेगा, सॉरी
180 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट रहेगा। नाउ उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेचर, तो कार्बन एक्ट एज आर डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक है? ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर फॉर्म, हियर आल्सो डायमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में देखो। बट कार्बन फ्री रेडिकल इज पैरा मैग्नेटिक। कार्बिन में भी दो टाइप है, ट्रिपलेट क्या रहेगा? डाई मैग्नेटिक एंड सॉरी सिंगलेट डायमैग्नेटिक, ट्रिपलेट क्या रहेगा? सिंगलेट, और ये क्या रहेगा? ट्रिपलेट। इट इज अ सिंगलेट, इट इज अ ट्रिपलेट, राइट। ट्रिपलेट क्या रहेगा? पैरा मैग्नेटिक। नाइट्रीन सिंगलेट डायमैग्नेटिक और ट्रिपलेट क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ ऑल द रिएक्शन इंटरमीडिएट। सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट का हम लोग यहाँ पे क्या किए? कंपेयर किए। तो अगर हम लोग देखेंगे कार्बन आयन को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो रेस्ट ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर वो कार्बोकेटाइन क्यों ना हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बिन हो, नाइट्रीन हो, ऑल द स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिर्फ कार्बन आयन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्ट एज ए Lewis base as well as act as a nucleophile. Rest all other are electron deficient, act as a electrophile and Lewis acid. Right? So this is all regarding reaction intermediate. I hope you can enjoy this video. अब तुम्हारा सारे के सारा डाउट आई थिंक सो क्लियर हो गया है रिगार्डिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, नहीं हुआ है तो एक बार प्लीज फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियोस को देखो। बेटा दिस इज अ बिगिनिंग, तुमको अच्छे से मन लगा कि वीडियोस को देखना होगा तो ये सब चीज तुमको समझ में आ जाएगा। और एक बार जब हम लोग इसके बाद जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लास में मेरे आएंगे उनको और ये चीज रिपीट होगा और उनको और अच्छे से ये सब चीजें क्या आएगी? समझ में आएगी, राइट। तो अगर तुमको कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट कर सकते हो, कुछ नहीं समझा उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्कशन कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मेरा व्हाट्सएप नंबर तुमको पता है, नहीं पता तो एक बार नोट डाउन कर लो। यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 7875787759, राइट। यहाँ पे तुम लोग अपने क्वेश्चन भी मुझे भेज सकते हो और कोई क्वेरी से तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर तुमको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एसआर एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री फॉर नीट, जेईई, 12th, 11th, 9th एज वेल एज 10th। ठीक है, हम लोग सब चीजें 9th और 10th के बेसिक का सिलेबस लेते हैं, राइट। अभी जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ जाएगा, वैसे ही मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएंगे इन गढ़चिरौली, राइट। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो नियर बाय गढ़चिरौली स्टूडेंट्स हो प्लीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए इस नंबर पे तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आज यही पे हम लोग क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे टाइप ऑफ रिएजेंट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।